Hello everyone and welcome back to the channel. So guys, in this series we are discussing UPSC CSAT comprehension practice passages, and yesterday we did part 1 for the year PYQs of the year 2014, and this is the second session, part 2, for your previous year passages for the year 2014. So guys, I hope through these sessions we are able to help you out in your practice, in your journey for your for your preparation for CSAT for the next year. So guys, let's start with the session and let's see what sort of passages we are going to discuss today. But before we go any further, don't forget to press the like button. Don't forget to subscribe to the channel if you're new here. And if you are a beginner who is just starting out to prepare for UPSC CSAT, the comprehensive guidebook that we have launched is a one-stop solution for every information that you need to prepare for this exam, ranging from strategy to sources to syllabus, and every individual information that you need for anything that you need to prepare for CSAT is given in this guidebook. And this guidebook is absolutely free, so you can download this ebook from the description of the video. The link for this ebook has been given in the link below in the video itself. So go download it and get benefited and start preparing for your exam. So let's start with the passages for this session. We'll be discussing 3 level 1 passages, which are good passages to discuss, and you'll see what sort of questions you might face in the exam. So there are different questions that I've taken up today in the passages. So let's start. But if you know how we start, first read the question. Just understand what the question demands. Which one of the following statements best sums up the above passage? So we have to find the summary, the crux of the passage, right? Then read the passage and then read the options. So let's go, guys. Look for the summary of the passage. We generally talk about democracy when it comes to any particular thing. We prefer belonging to our caste or community or religion. So we generally talk about democracy. हम जनरली तो हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, सबको आज़ादी है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एनी पर्टिकुलर थिंग, लेकिन कोई पर्टिकुलर चीज़ की बात आ जाए, फिर हमें अपनी जात, अपने धर्म, अपना समाज याद आ जाता है. तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वी जनरली टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, बट व्हेन इट कम्स टू एनी पर्टिकुलर थिंग वी प्रेफर बिलोंगिंग to our caste or community or religion. So long as we have this kind of temptation, our democracy will remain a phony होता है झूठी, दिखावटी. ठीक है. सो जब तक हमारे मन में ऐसी टेम्पटेशन रहेगी कि भाई बोलने में तो हम डेमोक्रेटिक है, लेकिन जब किसी एक्चुअली में किसी बात पे आ जाएं तो फिर हमें समाज, अपनी जात, अपना धर्म याद आ जाता है, राइट. तो जब तक हम ऐसी टेम्पटेशन को मन में रखेंगे, आर डेमोक्रेसी विल रिमेन अ फोनी काइंड ऑफ डेमोक्रेसी. वो झूठी तरह की डेमोक्रेसी रहेगी, वो सच्ची डेमोक्रेसी नहीं बन पाएगी. वी मस्ट बी इन अ पोजिशन टू रिस्पेक्ट अ मैन एज अ मैन. हमें एक इंसान को एक इंसान की तरह रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड टू एक्सटेंड अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट टू दोज हु डिजर्व देम, not to those who happen to belong to our community or race. सही बात है कि भैया अगर डेमोक्रेटिक बनना है तो इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो, ना कि ये फेवरिज्म दिखाओ कि भाई वो मेरी जात का, मेरी धर्म का है, मेरे समाज का है, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, भाई मैं उसको प्रायोरिटी दिखाऊंगा. तो ये नहीं होना चाहिए. तो यही वो कह रहा है कि भाई लोग कहते तो हैं हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं कर पाते. So we must be in a position to respect a man as a man and to extend opportunities for development to those who deserve them and not to those who happen to belong to our community or race. This fact of favoritism has been responsible for much discontent and ill will in our country. ये जो favoritism का जो, ठीक है, ये जो तरीका है, इससे हमारे देश में बहुत डिसकंटेंट मतलब सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन और इल विल मतलब बहुत बुरे प्रभाव हमारे देश में देखे जाते हैं. तो व्हाट इज द समरी ऑफ द पैसेज? आवर कंट्री हैज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी विद इट्स मेनी कास्ट, कम्युनिटीज एंड रिलीजन्स. ये समरी है पैसेज की कि हमारे देश में बहुत जात, धर्म और समाज है. नहीं. ट्रू डेमोक्रेसी कुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल. यस, वो कह रहे हैं सही जो डेमोक्रेसी है वो सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज देकर ही मिलेगी. सो फार नन ऑफ अस हैव एक्चुअली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. कि भाई हम अभी तक हमें से किसी को भी डेमोक्रेसी का मतलब समझ नहीं आया. देखो ये एक्सट्रीम ऑप्शंस होते हैं कि नन ऑफ अस हैव एक्चुअली अंडरस्टूड, कि किसी को डेमोक्रेसी का मतलब नहीं पता. ऐसा नहीं है, ठीक है. वो सभी को नहीं बोल रहा, वो मोस्ट लोगों को बोल रहा है. भाई ज़्यादातर लोग हैं, जनरली हम ऐसे बातें करते हैं. तो जनरली, नॉट ऑल, ठीक है. तो एक्सट्रीम ऑप्शंस को हमेशा एलिमिनेट करते हैं. एंड फोर्थ ऑप्शन, इट विल नेवर बी पॉसिबल फॉर अस टू एस्टैब्लिश ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन आवर कंट्री. ये देखो, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हुआ है. ये भी एक्सट्रीम ऑप्शन है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाए.
जैसा भी नहीं है. सो आई थिंक द राइट समरी इज ट्रू डेमोक्रेसी कुड बी स्टैब्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो ही सच्चे मायने में जो सच्ची डेमोक्रेसी है उसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है. तो दैट इज द समरी ऑफ द पैसेज. ठीक है, चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल कॉरोलरी टू द अबव पैसेज, के सबसे सही कॉरोलरी क्या है जो गिवन पैसेज है उसमें से. कॉरोलरी क्या होता है गाइस? इन्फ्रेंस ही होता है कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज इज कॉल्ड अ कॉरोलरी. ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या है पैसेज हमारा. बाय किलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कॉम्पिटिशन, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन को खत्म कर कर. सो बाय किलिंग ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, कि जब लोगों को पता हो कि क्या हो रहा है, ठीक है, लोग जान सकते हैं कि भाई सही हो रहा है गलत हो रहा है. कंपटीशन को खत्म करके, सो बाय किलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कंपटीशन. क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है? जो सिर्फ पैसे के लिए जो कैपिटलिस्ट जो इंडस्ट्रीज जो काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं. सो बाय किलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड क्रोनी कैपिटलिज्म इज ए हार्मफुल, क्रोनी कैपिटलिज्म इज हार्मफुल टू फ्री एंटरप्राइज, कि भाई किसी भी आज़ाद बिजनेस के लिए ये चीज़ बहुत ही खराब है. तो बाय किलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कंपटीशन, क्रोनी कैपिटलिज्म इज हार्मफुल टू फ्री एंटरप्राइज. अपॉर्चुनिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी और फ्री एंटरप्राइज के लिए बहुत खतरनाक है. क्रोनी कैपिटलिज्म वेयर रिच एंड द इन्फ्लुएंसर आर alleged to have received land and natural resources and various licenses in return for payoffs to venal politicians. venal मतलब जो बेसिकली जो ये गलत काम करने लग जाते हैं, जो बेसिकली गलीबल होते हैं, गलीबल तो क्या ही बोलो, लेकिन कोई बोल सकते हैं कि भाई ये रिश्वत लेते हैं या गलत काम करते हैं. सो बेसिकली उसने क्या बोला कि क्रोनिक कैपिटलिज्म वेयर रिच एंड द इन्फ्लुएंशियल, जो अमीर है और जिनके पास ताकत है, they are alleged to have received land, natural resources and licenses in return for payoffs to venal politicians is now a major issue to be tackled. और ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है देश में. ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेंजर्स टू ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया इज द मिडल इनकम, where crony capitalism creates oligarchies that slow down the growth. कि इंडिया जैसी देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में जो मिडिल इनकम जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म की वजह से ओलिगार्कीज बन जाते हैं, मतलब परिवारवाद शुरू हो जाता है कि भाई एक ने अगर ऐसा कर लिया तो उसी के ही परिवार में ही वही चलता रहेगा, आगे पैसे बनते रहेंगे, पैसों से पैसे बनते रहेंगे, और यही फिर मिडिल इनकम प्रॉब्लम इंडिया जैसी कंट्रीज में खड़ी हो जाती है. तो ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन होना चाहिए, क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, ये उसने दो बातें कही हैं. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल कॉरलरी. तो पढ़ते हैं, लॉन्चिंग मोर वेलफेयर schemes and allocating more finances for the current schemes are urgently needed. ये तो कहीं बात ही नहीं हुई यार पैसेज में. Effort should be made to push up economic growth by other means and provide licenses to the poor. कि दूसरे तरीकों से इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए और गरीबों को लाइसेंस दिया जाना चाहिए. चलो हो सकता है, देखते हैं आगे. Greater transparency in the functioning of the government and promoting financial inclusion आर नीडेड एट प्रेजेंट. येस, दैट इज अ बेटर ऑप्शन. ये गरीबों को लाइसेंस देना चाहिए, ये कोई मतलब नहीं है. देखो, जिसको जो डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए, लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये कह रहा है वो, कि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन आर नीडेड एट प्रेजेंट, के सभी को मिलजुल कर जोड़कर इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान रखना चाहिए. एंड वी शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन डेवलपिंग मैन्युफैक्चर सेक्टर देन सर्विस सेक्टर. ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है. तो आई थिंक इट इज़ क्लियरली, इट कैन बी इन्फर्ड के द कॉरलरी इज के ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जाना चाहिए, तभी हम ये क्रोनिक कैपिटलिज्म को कम कर पाएंगे या ख़त्म कर पाएंगे. सो दैट इज़ द कॉरलरी दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द पैसेज. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं गाइस. क्लाइमेट एडेप्टेशन, अब इसमें नेक्स्ट उसने इन्फ्रेंस पूछा है. पहले तो हमें क्या ढूंढना है? इन्फ्रेंस ढूंढना है कि क्या इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है इस पैसेज से. तो लेट्स रीड द पैसेज. क्लाइमेट एडेप्टेशन मे बी रेंडर्ड इनफेक्टिव, कि क्लाइमेट एडेप्टेशन जो है कि भैया मतलब जो प्रकृति में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो क्लाइमेट में चेंज हो रहे हैं, तो क्लाइमेट एडेप्टेशन मे बी रेंडर्ड इनफेक्टिव if policies are not designed in the context of other development concerns. कि climate adaptation जो है अगर वो ineffective हो जाएगा अगर उस पर अगर जो पॉलिसीज बनाई गई, अगर उनको बनाते हुए दूसरी डेवलपमेंट कंसर्न्स को ध्यान ना रखा गया तो. फॉर इंस्टेंस, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी दैट सीक्स टू improve food security in the context of climate change may include a set of coordinated measures related to agriculture extension, crop diversification, integrated water and pest management and agriculture information series.
तो वो ये कह रहे कि क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हमें फूड सिक्योरिटी की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारी फैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, इंटीग्रेटेड वाटर एंड पेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन सीरीज. So some of these measures may have to do with climate changes and others with economic development. तो अब यही वो क्या कह रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी अगर हम क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में बनाएं फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, तो उसमें अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी. एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्योंकि वो फूड सिक्योरिटी के लिए है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वो क्लाइमेट चेंज के लिए है, इंटीग्रेटेड वाटर एंड पेस्ट मैनेजमेंट वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है, और एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन सीरीज वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज दोनों के लिए है. तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज के लिए जब वो पॉलिसी बना रहे हो तो बाकी चीज़ों को भी ध्यान में रख के पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए, अदरवाइज वो काम नहीं कर पाएंगी. सो व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज. तो ऑप्शन है नंबर 1, इट इज़ डिफिकल्ट टू परस्यू क्लाइमेट अडेप्टेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज. ये कह रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज में मुश्किल है क्लाइमेट अडेप्टेशन को कर पाना. ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया उसने, बट फिर भी आगे देख लेते हैं एक बार. इंप्रूविंग फूड सिक्योरिटी इज ए फार मोर कॉम्प्लेक्स इशू देन क्लाइमेट अडेप्टेशन. ये नहीं कह रहा वो कि फूड सिक्योरिटी, वो क्या कह रहा है कि इफ पॉलिसीज आर नॉट डिजाइंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर डेवलपमेंट कंसर्न्स. नेक्स्ट है एवरी डेवलपमेंटल एक्टिविटी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक टू क्लाइमेट अडेप्टेशन. एवरी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, ये एक्सट्रीम हो गया ऑप्शन ये कि हर डेवलपमेंटल एक्टिविटी क्लाइमेट चेंज से क्लाइमेट अडेप्टेशन से रिलेटेड है, ऐसा नहीं भी कहा उसने. एंड फोर्थ, क्लाइमेट अडेप्टेशन शुड बी एग्जामिन्ड इन टैंडम विद अदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑप्शंस. यस, यही मैं कह रहा था कि क्लाइमेट अडेप्टेशन को दूसरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ या डेवलपमेंट ऑप्शंस के कॉन्टेक्स्ट में या उनको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए उनकी पॉलिसीज को क्रिएट किया जाना चाहिए, जो उसने फर्स्ट लाइन में ही बोला था. सो आई थिंक ऑप्शन डी इज द right answer for this. This is the right inference that can be taken from the passage. Okay, so guys, this is how you solve your passages in the exam, by critically reading your passages, solving your questions, and then eliminating your options, and then getting to the right answer in your exam. So if you like the way we are helping you in this series, in this through these sessions, now I invite you to join us in our comprehensive course, where within 100 hours we are offering to prepare you for CSAT, completely prepare you for CSAT for all the subjects, maths, that is quantitative aptitude, English, as well as reasoning. So you will be ready for all the topics for your CSAT. Now in this course we are providing you all the concept classes which are recorded in recorded form. You can watch them from day one and anytime, and anyhow you want. And then downloadable PDFs are also given with these lectures. Then there are practice questions, there is sectional test, and then there are full length test to practice your skills in your comprehension and in your other topics for your CSAT paper. So there's a complete test series for the same. There will be weekly live doubt sessions by the faculty members to help you out in your journey, and then there will be live revision classes before the exam as well, where you will be helping you live through the lectures for your exam. So this is what we are offering you. The link has been given in the description of the video, and there is a special discount as well. So go check it out and get benefited by the by the course that we have launched for you. So come join us and get benefited from it. And guys, if you want the PDF of this session, you can join our Telegram channel. The link for our Telegram channel has been given in the description of the video. Now if you have any doubts, if you have any queries, you can call us on this number, that is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. Right, so we'll continue this series next week as well. We'll come up with more such sessions. So till then guys, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you'll do very well in the endeavors ahead. Right, so having said that, I'll take your leave for this week. I'll see you again next week, Friday, Saturday, with more such comprehension practice passages. So stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you.